Jai Shri Krishna everyone. This is Rachna here and I am back. So let's start. Today I am going to talk about few more Gitas जो पहले अलग अलग जिन्होंने गीता बोली है और जो हमारे पास हमारे पुरातन लोगों ने जिनको रिटेन करके रखा है. तो ऐसे मेन देर आर 5 टाइप्स ऑफ गीता. तो पहली है वी नो श्रीमद् भगवद गीता. एक है गुरु गीता जो भगवान शिव और पार्वती के बीच में का कन्वर्सेशन है. थर्ड इज अष्टावक्र गीता जो अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में का कन्वर्सेशन है. फोर्थ इज रावण गीता जब रावण और जो लक्ष्मण जी के बीच में का कन्वर्सेशन है. फिफ्थ इज उद्धव गीता. और फिर और भी गीताएं हैं जैसे साई गीता कहते हैं लोग, उद्धव गीता कहते हैं. तो दैट इज सेम नॉलेज गिवन एट डिफरेंट टाइम्स बाय डिफरेंट पीपल. But these are main 5 Gitas which have a strong relevance in our lives and which is must to be at least read or known. At least we should have knowledge of these 5. So what is Guru Gita? Guru Gita is a conversation between भगवान शिव एंड पार्वती जी. तो ऐसा एक बार होता है कि शिव जी एक दिशा में देखकर प्रणाम करते हैं. तो पार्वती जी इज अम्यूज्ड लाइक भगवान यू आर द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, आप तो सबसे बड़े हैं, तो फिर आप किसको प्रणाम कर रहे हैं. तब भगवान शिव उनको बताते हैं कि जो ऑल परवेडिंग है एलिमेंट दैट इज गुरु तत्वा and which is beyond Brahma, Vishnu and Shiv. So then she is very curious to know what furthermore she wants to know about it. So then he gives a discourse and that is called as Guru Gita and it is very beautiful. Like उसमें जो बताया है the existence of Guru, how it works and who is our inner Guru, who is the like Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namah. So that Guru is the ever pervading element and वो हम उनको जानने के लिए, लेकिन गुरु गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए we should have eligibility like Parvati ji. Parvati ji, she was like the best student, I'll say. Her surrender, when a disciple or a devotee or a student, when they are like Parvati, they are eligible for Guru Gita. Now what were her unique qualities? Her surrender to her Guru, her like Lord Shiv was her husband also, but at the same time जब वो knowledge जानना चाहते थे तो पार्वती जी was always like a student to him. और पार्वती जी never had a doubt on his Guru. She was all surrendered and 100% she had her trust on him. तो अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आप भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन 80% you might listen to me, 20% you are judging me, you are parallelly thinking something, you are ये ठीक बोल रही है नहीं बोल रही. Is that not happen that with us? So Guru Gita ये qualities होते हैं. She was so strong. When you want to become you want to know Guru Gita, you have to have that eligibility criteria. Like she was so focused, so determined. उन्होंने इतनी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए. शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन पेनेंस ऑस्टिरिटीज़ में, इतना ज़्यादा तप था उनके अंदर और हर माइंड वॉज सो फोकस्ड. सो दैट क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. Then second is Srimad Bhagavad Gita. We all know about it and we will be talking more about it. So I'll just give a brief about it. So Bhagavad Gita कैसे है ना, वो हर किसी के अंदर एक अर्जुन छुपा हुआ है. But to become that complete ना, to have those complete qualities of Arjun, that itself is a tap. Sorry about this. Arjun was 100% a good learner, quick learner. He was compassionate. He never found fault with others. That was another unique quality of Arjun. And बड़ों का रिस्पेक्ट करना. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ही यूनिक थे और उसने हर रिलेशन, हर इसमें उसका गुरु शिष्य का लाइक द्रोणाचार्य, लाइक इट इज़ वो अपने आप में एक मिसाल लिख देता है. वैसे ही अपने दादाजी के साथ जो उसका रिलेशन था, भीष्म पितामह के साथ, एंड भगवान के साथ एज अ फ्रेंड, एंड अपने ब्रदर्स के साथ ना. So though he was a most, the strongest of 5 of them, but he never showed it off. He never had that ego.
and on the verge of war also, he was compassionate about his enemies. He knew they would be killed, and he had that compassion for them. He wanted to do something for them. So many a times, having the right intention, that is why he was so close to भगवान श्री कृष्ण. जबकि पांचों पांडव अपने आप में बहुत यूनिक थे. युधिष्ठिर तो एक धर्म का प्रतीक माना जाता था, बट स्टिल he was not as close as Arjun was, because these were the unique qualities that Arjun had. And he had complete surrender again for with about Bhagwan Shri Krishna. He had his complete surrender in himself. He had that trust in Krishna. So that is about Bhagavad Gita. We'll talk more about it. Then third is Ashtavakra Gita. Ashtavakra Gita is a conversation between sage Ashtavakra and Raja Janak. Raja Janak भी देखिए पूरा, like he was in his comfort, he had everything. He was a king and he wanted knowledge. He was striving very hard for knowledge. And once it happened that he was in his court, and he was listening to the different issues about the kingdom, and suddenly he falls off to sleep. एंड ऐसा होता है कि सपने में उनको दिखता है कि उनका राज्य नष्ट हो चुका है, पूरे फ्लड्स आ गए हैं और सब कुछ ख़त्म हो चुका है. और उस टाइम पर ही इज़ बेगिंग, ही हैज़ बिकम अ पॉपर. और वो जगह जगह उनको बहुत भूख लगी है, ही इज़ बेगिंग फॉर द आर्म्स. एंड सडनली ऐसा होता है कि कहीं से उनको कोई एक भिक्षा में रोटी देता है, और जैसे ही वो खाने वाले होते हैं तो एक बर्ड कम्स एंड इट टेक्स दैट रोटी का पीस एंड फ्लाइज ऑफ. एंड ही इज लाइक सो एंग्री एंड इज हाँ. एंड जैसे वो हाँ करते हैं तो उनका सपना टूट जाता है, आँख खुल जाती है. और जैसे ही आँख खुलती है तो ही रियलाइजेस कि ही इज इन हिज कंफर्ट ऑफ हिज किंगडम, ही ऑन हिज थ्रोन. And then, but he observes the hunger that he had in his stomach when he was in the dream. It is the same hunger. And then he starts thinking कि whether that was the truth or is this the truth, or whether that was the dream or is this a dream. And that makes him more profound, like that thought becomes very profound कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ है जो मुझे जानना है, जो बहुत which is very mandatory for me to learn. सो उस वक्त वो कई लोगों को बुलवाता है, और ऐसे करके अष्टावक्र जी उसके जीवन में आते हैं, और तब अष्टावक्र उसको जो नॉलेज देते हैं. सो ऑलरेडी अ वेरी कंटेंटेड मैन, अ वेरी लर्नर्ड मैन. और फिर ऐसा आदमी जब कुछ पाना चाहते हैं, जो वो ज्ञान ढूंढता है, तो वो अष्टावक्र गीता है तब. और अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए भी आई फॉलो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. लाइक एज आई सेड, आई एम एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, एंड फॉर मी इज माई गुरु. So Gurudev has given a very beautiful discourse on Ashtavakra Gita, and in that discourse, before giving the discourse, he has given disclaimer. In that he has said कि अगर आपको अष्टावक्र गीता पढ़ना है तो there are few things which you have to keep in your mind. First is you have to be a good meditator. आपको meditate करना है. Second is you have to have cultured speech. आप क्या बोल रहे हो, अपनी वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए. People actually we do that. We kill people by our words, left, right, center. We go on by very harsh words. We hurt people. और ना एक तलवार का जो जख्म है ना वो भर जाता है, लेकिन शब्दों के दिए जो जख्म है ना वो नहीं भरते हैं. एंड थ्रू दिस आई विल ऑल्सो टेल ऑल माई टीनेजर्स एंड माई चिल्ड्रन कि प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट आर यू स्पीकिंग, बिकॉज योर स्पीच हैज़ पावर. We have learned this in our courses also. In our children program, we also emphasize on this power of our speech. तो हमने स्पीच पे ध्यान देना है. फिर उसके बाद अष्टावक्र गीता के बाद है अपना रावण गीता. रावण गीता में रावण वॉज अ महापंडित, ही वॉज अ ब्रह्म ज्ञानी, और इतना उसने शिव जी मतलब कैलाश पर्वत को दोनों भुजाओं से उठा लिया था. ही वॉज सो पावरफुल, एंड ही हैड ऑफर्ड 10 of his heads. Like 10 times he cut off his head to have divine darshan of Shiv. मतलब his was so persistent and his endurance was so high कि वो continuously he was trying until he won. And उसको फिर जो चाहिए था वो उसको मिला. लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जब हमको पावर मिल जाता है, जब हमको जो चाहिए वो मिल जाता है, if you are not able to handle that, then what happens? Our history tells, रामायण में वही होता है ना, रावण को सब पता चल सब मिल जाता है, उसके बाद उसकी मति भ्रम होती है, बुद्धि भ्रष्ट जिसको हम बोलते हैं ना. सो व्हेन यू हैव पावर एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, देन यू आर वेरी सून अबाउट टू कोलैप्स.
और बट व्हेन ही इज बीइंग लाइक ही इज अबाउट टू डाई, भगवान राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण जाओ और जाके ये ज्ञान रावण से तुम ले लो, जो ही इज अ ब्रह्म ज्ञानी एंड ही शुड टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट इज ज्ञान। और तब वो जो कन्वर्सेशन है दैट इज रावण गीता। ऐसे ही है उद्धव गीता। उद्धव गीता को हम हंस गीता भी बोलते हैं। और उद्धव गीता अगेन भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में का कन्वर्सेशन है। उद्धव वॉज अ ज्ञानी एंड ब्रह्म ज्ञानी एंड ही नेवर हैड डिवोशन। तो उसको भगवान ने ही उद्धव का ईगो बैचिंग जो किया वो लाइक बाय सेंडिंग हिम टू गोपीज, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट वेयर ही गोज टू गोपीज एंड ही टेल्स कि भगवान तुम भूल जाओ, भगवान तो भगवान है, ये है वो, ही टेल सो मेनी थिंग्स एंड गोपीज टेल हिम कि सी वी व्हाट विल डू ब्रह्म ज्ञान, हमको क्या करना है, वी ओनली आर कंसर्न अबाउट आवर कृष्ण, हमको सिर्फ कृष्ण से मतलब। तो देयर डिवोशन वाज सो प्योर दैट दे डिडंट इवन वांटेड एनीथिंग एल्स। Like Brahmagyan was something like which is people thrive lives to attain that. So वो तब he realizes कि what is true devotion, what is true ज्ञान and all that. So वो knowledge है उद्धव गीता में दिया। लेकिन ये पांचों गीताओं में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको सीखनी चाहिए, जो हमको इस एक ही संदेश मिलता है, नॉलेज इज सेम, ओनली द सीकर एंड दी जिसने ज्ञान दिया है, जिसने बताया है, वो अलग अलग हैं। तो जैसे शिव और पार्वती दोनों आर लाइक वी हैव टू रीच दैट, वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्लेंजिंग इनसाइड। फिर अष्टवक्र जो जनक राजा अगेन, और रावण और लक्ष्मण, सेम वे इज फॉर आवर उद्धव एंड श्री कृष्ण भगवान ऑल्सो। लेकिन हम जहाँ पर फिट होते हैं ना वो है अर्जुन और श्री कृष्ण, बिकॉज अर्जुन के अपने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। he loved Krishna so much, he knew that he is his best friend, he also knew that he is divine, but he was unaware about his that true form of Krishna, but still he had his complete faith in Krishna. और ब्यूटीफुल चीज़ एक और ये भी देखने वाली है कि भगवान ने जब अर्जुन, पहला जो चैप्टर है भगवद गीता का दैट इज कॉल्ड एज अर्जुन विषाद योगा, जिसमें अर्जुन गोज ऑन कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, कंफ्यूजन, he explicitly tells his confusion, fear, and then he says I will not fight this war, I will sit, and then he sits up. तब तक भगवान ने उसको कुछ भी नहीं बोला, भगवान ने उसको नहीं, अरे तू सही बोल रहा है, तुझे सही कंफ्यूजन हो रहा है, या दिस इज रॉन्ग, दिस, he did not say a word. And then in the second chapter Arjun asks Bhagwan कि now I surrender to you. There is a very beautiful shloka, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। सो इन दिस श्लोका अर्जुन आस्क्स भगवान कि देखो मैं डर के मारे, कायरता के मारे पूरा घबरा चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, सो आई टेक रेफ्यूज इन यू, यू प्लीज़ गाइड मी कि मैंने क्या करना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। तब व्हेन अर्जुन ने भगवान से पूछा, उसके बाद भगवान स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग और टेलिंग हिम। सो दिस इज विच वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल थिंग नो। हम बिना मतलब लोगों को इतना सारा एडवाइस देते जाते हैं, लेकिन जब भगवान को जो नॉलेज का पूरा सागर है, लेकिन वो भी पूछने के बाद ही ज्ञान दे रहे हैं, तो वो हमने सीखना है उनसे। एंड सो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। तब तक कि प्लीज़ भगवद गीता ले आइए और प्लीज़ ज़रूर उसको एक बार ओपन करके तो देखिए कि क्या है उसके अंदर। जय श्री कृष्णा।